Hello and welcome to Ignited Minds. Today, on 3rd of the August 2024, we are here with the Hindu newspaper analysis. In today's newspaper analysis, the articles which are highlighted on your screens will be discussed. Just going through the articles, I want you to understand that first of all, we'll go through NEET and the basics of NTA, what Supreme Court actually wanted government to do the overhaul of NEET UG on a deadline. Further, there is a discussion on privilege motion, which is a core part of our polity. There is one more discussion on the electoral bonds and what is the current status and why Supreme Court says that the quid pro quo while poll bonds are assumptions. What are these assumptions about different functionaries and institutions of the government of India like ED, CBI? We will discuss all of those assumptions which are being made in Supreme Court by the petitioner. Further, there is an important editorial which is now written by the ambassador of China to India, and he talks about the 5 M's or 5 mutuals. So, what is actually the mutualism which can be there between India and China to develop the dragon elephant tango or the dragon elephant bond? Next important editorial talks about the eco-sensitive zones in Western Ghats. What are these eco-sensitive zones? How can we deal with them? There was an earlier decision about the Arundhatiyar, which is a caste, and this caste, along with the others, were subclassified by the government of Tamil Nadu. Then, what was the judgment of Supreme Court? And Supreme Court has upheld the validity of this quota law, which was passed with Tamil Nadu. In this sense, we will also discuss the editorial which talks about the yesterday's Supreme Court judgment, day before yesterday's judgment of Supreme Court about the subclassification of the caste in India. An important science and tech editorial talks about the Axiom 4 mission, which ISRO and NASA are conducting together. So let's start the discussion with a UPSC prelims PYQ, which was asked in UPSC 2024. इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इकोनॉमी से है एंड इस क्वेश्चन को समझने का एक सिंपल तरीका है। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट एडवांस का है, करंट अफेयर्स का है, एक स्टेटमेंट स्टैटिक का है। ठीक है, नाउ सी, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर टू डिफॉल्ट, अगर यूएसए डिफॉल्ट कर जाए अपने डेट पे, मतलब जितना यूएसए का बोरोइंग्स है वो बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्रिंसिपल जहां से उसने बोरो किया है, आउटसाइड मार्केट से बोरो किया है, वो वापस ना दे पाए, देन द होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, जिनके पास यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स होंगे, will not be able to exercise their claims to receive the payments. They won't be able to exercise their claims, although their claims stand there. ठीक है, आपके पास क्लेम है, इट्स लाइक कि आपके पास 100 रुपए का नोट है, इट मीन्स दैट यू क्लेम बट यू कैन नॉट एक्सरसाइज इट। वाई? बिकॉज ये 100 रुपए का नोट अब वैलिड नहीं है। जैसे आपके पास 500 रुपए का नोट, जो पुराने 500 रुपए के नोट्स थे, अगर वो अभी है, इट मीन्स यू डू हैव अ क्लेम, बट गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया। दे आर नो लॉन्गर अ फिएट करेंसी, नाउ यू कैन नॉट क्लेम दैट थिंग ऑन द गवर्नमेंट, you cannot exercise that claim because exercising that claim is a violation of law as per the government of India, which is quite normal. अगर आप इसको नोट के परस्पेक्टिव में देखो तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट है, बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट है। दूसरा, द यूएस गवर्नमेंट डेट is not backed by any hard assets but only by the faith of the government. ठीक है, which means that आपका
जो नोट है आपके पास, आपका जो डॉलर का बिल है आपके पास, या आपका जो डेट है आपके पास, यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है, इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड एसेट्स। अब अगर यहाँ पे आप बस एक चीज हटा के, ये डेट हटा के बस आप यहाँ पे डॉलर लिख दो, ठीक है, ये बॉन्ड हटा के आप डॉलर लिख दो, बस आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा दैट व्हाई अ पर्सन कैन नॉट क्लेम दैट थिंग, बिकॉज यूएसए गवर्नमेंट हैज नॉट, सी सिंपल, यूएसए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उनके पास डॉलर नहीं है। वंस दे डू नॉट हैव डॉलर, देन अगर आपके पास, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो जो बॉन्ड आपने ले रखा है, जो आपके पास डॉलर का बिल पड़ा हुआ है, आप यूएसए की गवर्नमेंट को छोड़ दो, आप इंडिया की गवर्नमेंट को ले लो। अगर इंडिया की गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है, तो आपके पास जो नोट्स है, आपके पास जो 100 रुपए का नोट है, कंसिडर दैट एज अ बॉन्ड, ठीक है, वो गवर्नमेंट का बॉन्ड, कंसिडर दैट। ट्रेजरी बॉन्ड हटा दो, ये बस इसलिए लिखा गया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। मैं बोल रहा हूँ सिंपल बॉन्ड है आपके पास, आपके पास ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास एक क्लेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके। क्या आप जाके इस क्लेम को एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अब आपके पास है ही नहीं। वो आपको क्या देंगे इसके बदले? बिकॉज देर इज अ प्रॉमिस दैट दे विल पे यू 100 रुपीज, है ना? And or the equivalent of this. What was equivalent of this? That was the hard asset. What was that hard asset? That was gold or silver, bullion. But once government is not having anything as a hard asset to back its currency, है ना, or the debt to back its currency, or the currency to back its debt, then you cannot claim it. So therefore, the two statements are in sync, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट बैक्ड बाय हार्ड एसेट्स, सो यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर क्लेम। अदरवाइज अगर आपकी क्लेम जाती भी, तो आप क्या बोलते कि मुझे 100 रुपए के बदले, अगर आपके पास 100 रुपए नहीं है, जो मैंने आपसे बॉन्ड खरीद रखा है, गवर्नमेंट ने आपसे पैसा ले रखा है बॉन्ड के ऊपर, आपने वो बॉन्ड जाके गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, आपने बोला ये बॉन्ड का मुझे वापस दे दो डॉलर, जो मैंने आपको दिया था उस टाइम पे, मैंने बॉन्ड खरीदा, आपको डॉलर दिया, अब मुझे डॉलर वापस दो और बॉन्ड अपना वापस ले लो। बट यूएसए की गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो वो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। हावेवर, अगर बॉन्ड या डेट बैक्ड होता हार्ड एसेट से, देन वो आपको इस डॉलर के बदले गोल्ड या सिल्वर दे देते, जबकि गोल्ड या सिल्वर उनके पास है ही नहीं, तो वो आपको कैसे देंगे? दैट इज वाई द आंसर गोज ए, ठीक है, you can understand it very well. Like, statement 2 is the correct explanation of this, because there is no physical commodity such as gold or silver, जो मैंने आपको explain किया, that is what has been written in detail in this explanation. Beginning with the discussion, the first news article which came on the first page of the newspaper talks about Supreme Court setting a committee. ठीक है, कमेटी किस लिए रखी गई है, कमेटी किस लिए बनाई गई है? सबसे पहले याद रखना है, कमेटी के राधाकृष्णन, जो कि इसरो के इससे पहले चीफ थे, उनके अंदर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट आप जो ये नीट यूजी के एग्जाम्स हो रहे हैं, इनको टोटल ओवरहॉल करो, बिकॉज एनटीए ने बहुत सारे लैप्सेस किए हुए हैं इन कंडक्टिंग द टेस्ट्स। Therefore, there should be a committee which should be constructed under K. Radhakrishnan to submit to the center. ये कमेटी बनवाई किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने। रिपोर्ट किसको देगी? सेंटर को। ऑन recommendations फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नीट यूजी एग्जाम्स। यहां तक क्लियर है? नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और एंट्रेंस टेस्ट नीट 2024 में बहुत सारे मैटर्स हो गए थे। हम सब लोगों ने देखा दैट देयर वेर अराउंड 1500 स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, मोर देन 1500 स्टूडेंट्स, एंड देन दोज ग्रेस मार्क्स वेर टेकन बैक, एंड व्हाट नॉट वाज देयर, व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस व्हिच सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये वाला इशू है, ऐसे ही आज के पेपर में लास्ट में जो क्वेश्चन है मेंस का, वो आप देखोगे सिमिलर पैटर्न पे है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स, क्योंकि बीइंग इन ब्यूरोक्रेसी आपको ये रिफॉर्म्स पे नज़र रखनी होगी,
because you always need reforms and you are the bureaucrat, so you have to make the reforms. जैसे एस राधा, ये के राधाकृष्णन, he also belongs to some extent the Indian bureaucracy. Because you are a bureaucrat in your own department, you too have to propose these reforms in future. इसीलिए आपको इन रिफॉर्म्स की स्टडी आज से ही करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिफॉर्म्स बोले, क्या रिकमेंडेशंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले बोला डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन के ऑडिट्स होने चाहिए, रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, फुल प्रूफ लॉजिस्टिक्स होने चाहिए कि स्टूडेंट कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ कहाँ पे उसने साइन किया, बायोमेट्रिक दिया, सीसीटीवी फुटेज कहाँ से हुई, कौन उसमें नजर रख रहा था, ऑल ऑफ दैट। प्लस देयर शुड बी अ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, जिसमें डिटेल्स हो हर एक चीज की कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कौन सी प्रेफर्ड सिटीज होंगी, उसमें सीलिंग ऑफ ओएमआर कैसे होगा, ओएमआर कैसे बंद किया जाएगा, ओएमआर की जो सीरियल्स होते हैं वो कैसे मेंटेन किया जाएगा, सीरियल नंबर ओएमआर का। वैसे ही सीसीटीवी फुटेज टेस्ट सेंटर्स पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स का डिक्लेरेशन कैसे होगा, अलॉटमेंट ऑफ टेस्ट सेंटर्स कैसे होगा, इन सब चीजों को ओवरऑल करना जरूरी है। हमें यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है दैट के राधाकृष्णन, इसरो चीफ, एक्स इसरो चीफ, इनके अंदर ये कमेटी बनाई गई है फॉर नीट रिफॉर्म्स। तो एनटीए जो है ये कौन कौन से टेस्ट कराता है, ये सारे टेस्ट कराता है, ठीक है। लाइक मोस्टली इन टेस्ट्स को ये रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ एनटीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जेडबलई, सीटीईटी, जीपैट, गेट, जीमैट, कैट एंड यूजीसी नेट, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स एनटीए कराती है। एनटीए जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट, सॉरी, दिस इज अ सोसाइटी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ सोसाइटी। एनटीए इज एन ऑटोनॉमस बॉडी which has self-sustained testing organization, ठीक है। It conducts the tests for higher educational institutions. Its objectives are to maintain and conduct efficient, transparent, and international standards based tests. It identifies its partner institutions जो इसकी हेल्प करते हैं टेस्ट कराने में। It also conducts online exams through these partner institutions. ये क्वेश्चन बैंक्स क्रिएट करती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक्स क्रिएट करती है। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर फॉर डेवलपिंग अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग। इसके साथ साथ ट्रेनिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन लाइक एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। इसके साथ साथ the other exams which are entrusted to it by ministries। तो कुछ मिनिस्ट्रीज भी अपने टेस्ट एनटीए के थ्रू कराती है। गवर्नेंस को लेके अगर आप देखो तो दिस इज चेयर्ड बाय एन एजुकेशनिस्ट। ये एजुकेशनिस्ट को अपॉइंट करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका अभी नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फर्दर इसका एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हु इज or will be of a rank of Director General, and he is appointed by Government of India. This has also a board
of governors which are comprising of some of the members of this institution। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज द नेक्स्ट एडिटोरियल फॉर टुडेज डिस्कशन। दिस एडिटोरियल इज इम्पॉर्टेंट। कल हमने एक डिस्कशन किया था, इस उस डिस्कशन में हमने डिस्कस किया दैट हाउ आर होम मिनिस्टर रेज्ड claims about the early warning system and the warnings which were given on July 23 to 25 to Kerala government। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमने और इसरो ने और आईएमडी ने बहुत सारी वार्निंग्स, इवन वेरी वेरी सीवियर रेनफॉल तक की वार्निंग दे दी थी, रेड अलर्ट भी दे दिया था किसको, केरला गवर्नमेंट को। बट केरला गवर्नमेंट थोड़ी बहुत लेथार्जिक हो गई और उन्होंने वो सारे मेजर्स नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। ये क्लेम्स थे डॉक्टर, ये अपना जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह उनके। बट कल की डेट में कांग्रेस ने एक प्रिविलेज मोशन लाया एंड कांग्रेस ने बोला दैट होम मिनिस्टर हैज मिसलेड द पार्लियामेंट, देयरफॉर इट हैज वायलेटेड द प्रिविलेजेस ऑफ व्हाट ही हैज वायलेटेड द प्रिविलेजेस ऑफ एमपी, ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाई इज इट सो? कांग्रेस की चीफ विप जो कि अभी राज्यसभा में है, जिनका नाम है जयराम रमेश, ही रोट टू द चेयरमैन जगदीप धनखड़ दैट मिस्टर शाह in his empathetic statements on early warnings issued by the union government have been proven to be false। अभी यहाँ पे मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि प्रिविलेज मोशन का एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर कोई मेंबर एमपी पार्लियामेंट को गलत चीज बताता है, देन प्रिविलेज मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट हिम। वन थिंग। सेकेंड, व्हाट इज प्रिविलेज मोशन? प्रिविलेज मोशन एक्चुअल में किस लिए बनाई है? just to make sure that there is a right to free expression to the members of parliament, plus this right to free expression and the right to speech जो वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, that is not liable to the court proceedings। उस चीज को लेके कोर्ट के प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगे। जैसे हमने 2 दिन पहले देखा दैट अनुराग ठाकुर, उन्होंने कुछ कास्ट के ऊपर कमेंट्स किए थे ऑफ राहुल गांधी, ठीक है, जिसके ऊपर बवाल खड़ा हो गया कि उनने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, अगर वैसी ही चीज पार्लियामेंट से बाहर बोली जाती, ठीक है, जैसे पिछली बार राहुल गांधी ने ऑन द कास्ट मोदी, ही हाईलाइटेड दैट दिस इज अ कास्ट विच इज एसोसिएटेड टू सम पर्टिकुलर प्रोफेशन, है ना, तो उन पे केस चला कौन सा, डिफेमेशन का, बिकॉज दैट वाज आउटसाइड द पार्लियामेंट। once it's inside the parliament, then this right to speech is prevented and protected by the constitution itself। now why is privilege motion introduced in the parliament? Because a motion can be raised on the breach of such privileges। कि अगर किसी मेंबर का ये वाला प्रिविलेज छीना गया तो उस पे प्रिविलेज मोशन चलाई जा सकती है, एंड दिस प्रिविलेज मोशन हैज टू बी एडमिटेड बाय द चेयरमैन। इट कैन बी रेफर्ड टू द प्रिविलेज कमिटी ऑल्सो। ठीक है, वंस एडमिटेड इट्स देन रेफर्ड टू द प्रिविलेज कमिटी एंड देन दैट कमिटी इन्वेस्टिगेट्स कि सच में प्रिविलेज ब्रीच हुआ है या नहीं। Now let's discuss a bit more about this privilege motion। ठीक है, what is this privilege motion and why is it there? ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले privilege motion, these privileges or parliamentary privileges they are special rights to the members of the parliament in both the houses, that is MPs in both the houses plus the legislative members of the state assemblies। ठीक है, Constitution also extends these parliamentary privileges to the persons who are entitled to speak in houses, like they are also given to Attorney General of India। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किस किस के पास होता है? एक तो एमपीज के पास होता है और उन मेंबर्स के पास जो हाउस
का पार्ट ले सकते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल जो हाउस में बैठ सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ वो सारे लोग जो पार्लियामेंट के किसी भी कमेटी का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन सब के पास ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है आपका। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू not to the president who decides being an integral part of the parliament. He does not have these privileges, but under article 361 constitution provides different set of privileges to the president. Okay, these parliamentary privileges which are under article 105 of the constitution, they are not provided to president of India, but president of India has been provided some privileges under article 361. Apart from these privileges, as specified in the Constitution, the Code of Civil Procedure 1908, that is CVC or Code of Civil Procedure, it talks about that there should be freedom from arrest and detention for the members under civil process. Further, अभी तक इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने के लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि मैंने अभी बोला, वंस द प्रिविलेज मोशन इज एक्सेप्टेड, इट्स गिवन टू द प्रिविलेज कमिटी। प्रिविलेज कमिटी इज अ स्टैंडिंग कमिटी of the house which examines the cases of breach of privilege. ठीक है, now this committee in Lok Sabha has 15 members and in Rajya Sabha it has 10 members. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई आपकी चीज। ये प्रिविलेज मोशन क्यों होती है और इसके साथ एसोसिएटेड और कौन कौन से प्रोविजंस है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ साथ देयर आर रूल्स गवर्निंग प्रिविलेज मोशन। ठीक है, और रूल्स गवर्निंग द प्रिविलेज। रूल नंबर 22 of Lok Sabha and the corresponding rule number 187 of Rajya Sabha governs these privileges. The rules say that a member may, by the consent of the chairperson or the speaker, chair of the house, may raise a question for the breach of privilege. ठीक है, then this question is referred to either member or the house or a committee thereof for all of these matters. ठीक है, मतलब क्या है इस चीज का कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग एक एमपी कंसेंट लेके, चेयरपर्सन की इजाजत लेके एक क्वेश्चन रेज कर सकता है कि इस चीज की वजह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इस एक वजह से हुआ है। जैसे इन दिस केस this matter was raised by a member of MP Parliament, that is Jairam Ramesh, and he raised this matter that due to the false evidence and false claims of Home Minister, the breach of privilege has been there. ठीक है, a breach of privilege has been there and that is why he asked for the upper house का जो chairperson है हमारा, that is जगदीप धनकर सर, उनका परमिशन लिया। ठीक है, and then asked that this privilege should be accepted. ठीक है, this breach of privilege motion should be accepted, privilege motion should be accepted. Done, यहां तक चीजें हो गई। नेक्स्ट थिंग कम्स टू द केस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो कि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो ये स्कीम है जिसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के विच वेर अ मनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग ऑफ political parties in India was there,
Now, the whole matter is something different, and we will discuss it in the upcoming slide. The question which is here in this news, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को. What are electoral bonds and why was there hue and cry on these electoral bonds? They are monetary instruments. ठीक है, मतलब क्या है इंस्ट्रूमेंट का? दैट इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट जिसका कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए इज देयर, वो एक बॉन्ड खरीदता है जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड. ये बॉन्ड वो खरीदता है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का. ठीक है, अब इस बॉन्ड पे किसी का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, देन ही परचेजेस द बॉन्ड एंड गिव्स इट टू पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी. इनको दिया, ये पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी जाती है बैंक पे. ठीक है, ये बॉन्ड बैंक पे जमा करती है, एंड देन बैंक इन टर्न विल गिव मनी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड टू पार्टी बी, ए पार्टी एबीसी. ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? और ये यहाँ पे ये जो बैंक है, ये कौन सी बैंक है? ये एसबीआई बैंक. ठीक है, डन. ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, दे कुड बी ब्रॉट बाय कंपनीज और इंडिविजुअल्स फ्रॉम एसबीआई. एसबीआई से ये खरीदे जा सकते थे, और देन दे कैन बी डोनेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी इनको एनकैश करके अपने पास पैसा रख ले. बट द कंडीशन इज दैट दिस पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, a person being an individual can buy bonds either single or jointly with other individuals also. Electoral bonds scheme, this was launched in 2018 to cleanse the political funding in India. However, यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था? ये स्कीम लाया गया था फॉर ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, और ये बोलने के लिए कि यहाँ पे जो फंडिंग है वो अब कैश में नहीं होगी, ब्लैक मनी के थ्रू नहीं होगी, ब्लैक मनी नहीं यूज किया जाएगा, बट व्हाइट मनी यूज किया जाएगा, और कैश के थ्रू फंडिंग होगी. कैसे होगी फंडिंग? कैशलेस फंडिंग होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, बैंक के थ्रू, फॉर्मलाइज चैनल्स के थ्रू फंडिंग होगी पॉलिटिकल पार्टीज को. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे लिखा ही नहीं जाता है कि ये बॉन्ड खरीदा किसने और ये बॉन्ड दिया किसको गया. बस इतना पता चलता है कि कितने बॉन्ड्स किस पार्टी को गए और कितने अमाउंट के बॉन्ड्स किस पार्टी को गए. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एनोनिमस नेचर आ गया था बॉन्ड का, इसकी वजह से ये बॉन्ड क्वेश्चन में आ गया, दैट इट टोटली एरोड्स दी ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग. यहाँ तक खत्म हो गया. देन इन दी scheme corresponding in 2022 there was an amendment जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि 15 दिन का टाइम होगा, एडिशनल 15 दिन का टाइम, which will be specified by the central government in the year of general elections to legislative assemblies and union territories with legislatures. और उसमें ये बोला गया था कि एक 15 दिन का टाइम जो है एडिशनल पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, और उसमें ये बॉन्ड्स खरीदे बेचे जा सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. इस इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी कितनी थी? अगर ये बॉन्ड किसी ने खरीदा, तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड हैज टू बी वैलिड फॉर 15 डेज. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, एंड नो पेमेंट शैल बी मेड टू एनी पेई ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर द एक्सपायरी डेट. तो उसके बाद तो नहीं होगा. देयरफॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड deposited by an eligible political party in the account shall be credited on the same day. ठीक है, तो एक दिन ए ने खरीदा, ए ने पार्टी बी को दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन पार्टी बी चली गई और बैंक से उसका पैसा ले लिया. द एलिजिबिलिटी फॉर दीज electoral bonds was that only those political parties which are registered ones under section 29A of representation of People's Act 1951, आरपीए 1951 के अंदर जो पार्टीज रजिस्टर्ड है, उन्हीं को ये बॉन्ड दिया जा सकता है. इसके साथ साथ द पार्टीज विच हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ वोट्स in last general elections,
ठीक है, उन पार्टीज को ये वोट, को ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता है। ठीक है, दे आर एलिजिबल टू रिसीव दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन क्यों किया? व्हाई वाज इट स्ट्रक डाउन? ठीक है, ऑल्दो इस चीज का एंटायर डिस्कशन हमने लास्ट ईयर किया हुआ है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे न्यूज सीरीज में ये पहली बार आया है। ठीक है, ये एडिटोरियल। नेक्स्ट, द वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स is a violation of right to information because the court held कि यहाँ पे एनोनिमस नेचर में फंडिंग हो रही है। किसी को नहीं पता कि कौन पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है और किस पार्टी को कर रहा है, उसने पैसे कहाँ से लाए और वो कैसे कर रहा है फंडिंग, जिसकी वजह से द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इज गेटिंग वायलेटेड। सबसे पहली चीज, it pointed out that such a right is not only restricted to fulfilling the freedom of speech and expression, but also this right prevents, okay, this right will also prevent and form a deep association between money and politics. ठीक है, पैसा और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ मिल जाएंगे एंड वंस दे गेट कोलैबोरेटेड, मतलब जब ये पैसा और पॉलिटिक्स इतने ज्यादा डीपली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देंगे, तो वही जन्म देगा एक चीज को जिसका नाम है क्रोनी कैपिटलिज्म, in which there will be only some of the capitalists who will be regulating all the money and then they will be in turn controlling whole politics of the state, जिसकी वजह से there will be the erosion of democracy। ठीक है, जो कि अच्छी चीज नहीं होगी इसकी वजह से। Second most important reason which Supreme Court highlighted was to curb the black money, कि अगर आपको पता ही नहीं है ये पैसा आया कहाँ से, किसने दिया, कब दिया, किसको दिया, तो ब्लैक मनी को तो प्रिवेंट ही नहीं कर रहा है ये। अब तो ब्लैक मनी कैसे भी करके ये इस रूट के थ्रू वाइट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डिस्कस्ड हेयर अ केस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज किया जिसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट था ये असल में के एस पुट्टास्वामी केस में भी लगा था। ठीक है, द केस विच हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, जो इस बार यूपीएससी ने भी पूछा था। आर्टिकल 21 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड दैट अगर हम बहुत ही कम रेस्ट्रिक्टिव मेथड लगाएं, लाइक अगर 20,000 रुपए का कैप लगा दे एनोनिमस डोनेशन पे, and the concept of electoral trusts which facilitate the collection of political contributions from donors, then it will be a better thing। जैसे कि हमने क्या बोला कि एक इंसान बस 20,000 रुपए डोनेट कर सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी को, बट दैट टू थ्रू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है, प्लस कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 cannot be said to be legitimate purpose for restricting the fundamental right of the information। तो फंडामेंटल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आरटीआई है उसको वायलेट नहीं कर सकते हम बेसिस ऑन दिस थिंग कि आप ये बोल रहे हो दैट द पिटिशनर सेज दैट यू कैन नॉट कर्ब ब्लैक मनी थ्रू दिस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। इसके साथ साथ देयर वेर अदर रीजंस आल्सो एसोसिएटेड टू इट। नाउ द क्वेश्चन इज, जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो केस ये है कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व थी, जैसे सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, इनके जो ऑफिसर्स थे, दे आर गिल्टी, दे अपियर टू बिकम एक्सेसरीज टू द करप्शन। ठीक है, क्योंकि स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया। नाउ द पिटिशनर इज आर्ग्यूइंग ऑन दिस थिंग कि जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव बीन सस्पेक्टेड ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स वन थिंग, कि इन सब लोगों ने साथ दिया था इस चीज को अंजाम देने के लिए, दैट ये सब इलेक्टोरल फंडिंग या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी ट्रांसफर करना
ये सब चीजें पिटिशनर बोल रहा है दैट इन सबको भी सजा मिलनी चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो आप मांग कर रहे हो दैट एक एसआईटी बिठानी चाहिए अंडर अ फॉर्मर टॉप जज to understand that what are the allegations based on the petitioner, that ये सब लोगों पे एलिगेशन लगा दिया कि ये सब लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, अभी ये नहीं करेंगे। लेट अस एग्जामाइन द केस इन अदर डिटेल्स। ठीक है, अभी ये नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स जस्ट एन अजम्पशन। ठीक है, द कोर्ट फाउंड दैट इट इज प्री मच्योर कि हम अभी ये कर दे कि एक एसआईटी अभी से बिठा दे इन सब लोगों के ऊपर, जब तक हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होंगे तब तक नहीं कर सकते। जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बॉन्ड्स, व्हाट आर द पोल बॉन्ड्स, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दिस एडिटोरियल वाज written by the current ambassador from China to India। ठीक है, he discussed some key elements in India and China relations। He said that China, देखो ये एडिटोरियल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोगों को आगे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आपने आंसर्स लिखने तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट आपके आंसर्स की जो लैंग्वेज है आईआर की, वो लैंग्वेज डिप्लोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है और वो वैसी लैंग्वेज है जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, देन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। व्हाट इज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब आप पॉलिटी के आंसर लिखो तो आपकी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। आप ऐसे कुछ भी अंड बंड छंड नहीं लिख के आ सकते। आपको अगर लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, आर्टिकल्स लिखने हैं, आर्टिकल्स का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैंग्वेज है, पॉलिटी का एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है। वैसे ही ये एडिटोरियल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज लिखी गई है अबाउट इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को बारे में कि इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। वो 5 M's या 5 म्यूचुअल्स, ये हम लिखेंगे अपने नोट्स में कि जो चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने दिए हैं 5 म्यूचुअल्स। वो 5 म्यूचुअल्स क्या है ये भी हम लिखेंगे, इन 5 म्यूचुअल्स को यूज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। बट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। He writes that China and India's friendship and the confidence and expectations for bilateral relations, we should support it। ठीक है, how we can support it? We have to support it with 5 guidelines of mutuals, that China and India are not rivals, they are not threat to each other, but they are partners in cooperation and developmental opportunities। अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द लैंग्वेज। ऐसे नहीं बोलना है कि चाइना पे हमला कर देंगे, चाइना को वो कर देंगे, गलवान वैली से निकाल देंगे, वो करेंगे, अरुणाचल से भगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, वो सब लैंग्वेज नहीं लिखनी है। लैंग्वेज ऐसी लिखनी है दैट वी आर नॉट राइवल्स, वी आर नॉट थ्रेट टू ईच अदर, वी आर पार्टनर्स इन कोऑपरेशन, वी आर पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, वी आर पार्टनर्स इन कोऑपरेशन। ठीक है, then what are the 5 mutuals which the ambassador sir has talked about? He says that these 5 mutuals provide a significant path for us to implement the above consensus। कैसे कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी बोला है दैट देर आर सम की एरियाज लाइक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड म्यूचुअल अकम्पलिशमेंट। दीज आर द 5 म्यूचुअल्स। अभी इस 5 म्यूचुअल का हम क्या करेंगे? तो हम इसका सिंपल एक चीज करेंगे दैट हम एक ऐसे अपने आंसर्स में, जब इंडिया चाइना का आंसर होगा तो कोऑर्डिनेशन के नाम से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे 5 म्यूचुअल्स, 1 2 3 4 और 5, ऐसा एक फ्लो चार्ट बना देंगे अपने आंसर्स में। बस, दैट इज, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 5 म्यूचुअल्स ऐसे हमने लिखा, 5 एम्स, 5 एम्स में हमने 1 2 3 4 और 5, 5 एम्स लिख दिए ऐसे। क्या क्या है 5 एम? सबसे पहला है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दैट इंडिया एंड चाइना शुड एक्सेप्ट जैसा देश वैसा भेष, द इंडियन प्रोवर्ब। ठीक है, वी शुड अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट इन विच वी आर, दैट इज हाउ म्यूचुअल रेस्पेक्ट विल वर्क। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग,
India and China should understand that they have fought the struggle for national independence and liberation, in which India's aspirations for national rejuvenation and China's aspirations for nationalism are both coinciding. Then we also should talk about the mutual trust as the key to develop इंडिया चाइना रिलेशंस. कैसे हम म्यूचुअल ट्रस्ट बना सकते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल सिचुएशन, बिकॉज इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है. अगर आप देखो तो रशिया यूक्रेन है ना, इसराइल पैलेस्टीन, गाजा का वॉर, आर्मीनिया अजरबैजान, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, फ्रांस का अभी कॉन्फ्लिक्ट, इटली का अभी कॉन्फ्लिक्ट ईयू के साथ, ठीक है. उसके साथ साथ यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, चाइना के साथ, है ना. और ये पूरा डिप्लोमेटिक एंगल प्लस दी इंडो पैसिफिक, ये सारा वोलाटिलिटी है. अफगानिस्तान से रिमूवल, ये विड्रॉल, अफगान ये यूएसए का, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रही है जहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल सिचुएशंस वोलेटाइल बन रही है. तो इस सिचुएशन में इंडिया को और चाइना को अपने नेबर को पहचान के एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट दिखाना चाहिए. once they establish this mutual trust, then only they can further proceed in their relations. Next, for an all round relationship, we should adopt to mutual accommodation. We should accommodate each other, ठीक है, that there is a guarantee that India and China can develop together. The key is to form a correct perception on differences and handle them in a proper manner. ये है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज. अदरवाइज हम बोलेंगे क्या, चाइना को चाहिए कि वो अरुणाचल के क्लेम्स हटा दे, वो गलवान से वापस चला जाए और लद्दाख को छोड़ दे. नहीं, वैसे नहीं लिखना है. लिखना ऐसे है, क्या लिखना है, दैट देयर शुड बी करेक्ट परसेप्शन ऑफ डिफरेंसेस. व्हाट आर द डिफरेंसेस? दे आर टेरिटोरियल डिफरेंसेस, ठीक है. देन देयर शुड बी प्रॉपर वे टू हैंडल देम, ठीक है, बिकॉज वी हैव बीन इन द एंशिएंट टाइम्स, वी हैव शेयर्ड अ बॉन्ड since 1400 years. We are sharing a bond since the arrival of Hyun Sang. तब से लेके आज तक हम लोग आपस में एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक है. उस बॉन्ड को हमें खत्म नहीं करना है. देन ओनली वी कैन एस्टैब्लिश म्यूचुअल अकम्पलिशमेंट. व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअल अकम्पलिशमेंट? कि चाइना भी अपने गोल्स को अचीव कर सकता है और इंडिया भी अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, ठीक है. The 20th Committee of the Communist Party of China concluded recently, third plenary session of 20th Central Committee of Communist Party of China, which was launched comprehensively in order to deepen the reforms in China. और वैसे ही इंडिया का भी सेम गोल है अबाउट विकसित भारत बाय 2047. एंड बोथ दीज, द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द थर्ड प्लेनरी का जो मिनट्स है, जो उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, इन दोनों को इन सिंक में लाके वी कैन डेवलप बोथ द कंट्रीज इन अ प्रॉपर वे. लास्ट में दीज 5 म्यूचुअल्स कैन हेल्प अस टू एस्टैब्लिश द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया के 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन पंचशील, ठीक है. पंचशील लाइक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट, नॉन इंटरफेरेंस, है ना. तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. इसके साथ साथ दी एम्बेसडर सर ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स विजन. इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है? कि मोदी सेड इंडिया एंड चाइना आर टू बॉडीज विद वन स्पिरिट. A dragon elephant tango is the only correct choice for both the sides. ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन आराम से बन सकता है, ठीक है. यहां तक क्लियर है? दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल्स, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल्स प्रॉपरली, ठीक है. इसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द इंडिया एंड चाइना और द चाइनीज पीपल हैव ऑल्सो चेरिश्ड अ विजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर द कॉमन गुड, ठीक है. तो चाइना का जो वर्ल्ड व्यू है, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर कॉमन गुड. जबकि इंडिया का वर्ल्ड व्यू, इट इज नॉट वर्ल्ड वॉर बट वर्ल्ड व्यू, इट्स अबाउट वासुदेव
कुटुंबकम। दैट इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली, विच वॉज द थीम ऑफ G20 ऑल्सो। ठीक है। और पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स है और द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस विद चाइना, इट टॉक्स अबाउट द म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी। इट टॉक्स अबाउट म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। इट टॉक्स अबाउट म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। ये 5 चीजें याद रखनी है। प्लस इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड म्यूचुअल benefits. Lastly, it talks about peaceful coexistence. ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं इस एडिटोरियल को लेके या इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेके। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वंस हु आर बेसिकली डाउन ट्रोडन। हम सबको याद है कि परसों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया अबाउट द रिजर्वेशन, एंड नाउ the Supreme Court of India has mentioned that there should be change and there should be overhaul in the reservation system. कल जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो भी इसी चीज पे था, that we should adopt 2 reforms in affirmation or affirmative actions. ठीक है, what are the reforms which we should adopt in our affirmative actions? Basically that question was also pertaining to this only, because कल की डेट में ही हमने रिजर्वेशन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, फ्रॉम विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फूले, इन 1800s दे गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन फॉर द कास्ट। तब से लेके आज तक, इवन 1933 का कम्युनल अवार्ड, उसके बाद पूना पैक्ट, उसके बाद 2000 1999 and all the judgments and all the cases we discussed in detail and in chronology also कल के डिस्कशन में। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट डिस्कशन प्रॉपरली जो कल हुआ था, बट अभी यहाँ पे 2 चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 2 चीजें हाईलाइट की गई है। एक, ऑल्दो ये मैंने कल भी बोला था, वन इज द 2005 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस। ठीक है, केस क्या था? सिंपल, अगर किसी कम्युनिटी को एससी कम्युनिटी डिक्लेयर करना है तो ये कौन करेगा? ये करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एक लिस्ट निकालते हैं और उसी लिस्ट के अंदर ये चीज होती है दैट इट इज डिक्लेयर्ड दैट दिस कम्युनिटी इज नाउ पार्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अभी ये जो लिस्ट है, क्या इस लिस्ट में चेंजेस आ सकती है? दिस इज द कंडीशन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कास्ट है ABC, ठीक है, इसको बोल दिया गया शेड्यूल कास्ट, है ना, बट क्या इस कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन हो सकती है? ठीक है, कि A, B और C, A को ज्यादा कोटा दे दिया गया, फॉर एग्जांपल 10 सीट्स का, B को 8 सीट्स का कोटा दे दिया गया और C को 4 सीट्स का कोटा दे दिया गया, 4% रिजर्वेशन दे दी गई। अगर ये ABC का कोटा फॉर एग्जांपल टोटल एक स्टेट में जो ABCs है इनका, फॉर एग्जांपल अगर इनके पास 30 सीट्स है ना, और इन्होंने ये ABC कास्ट को देनी है, 30 सीट्स रिजर्व करके ABC कास्ट को देनी है, देन इस ABC कास्ट में क्या ये अलग अलग सब कास्ट को अलग अलग क्लासिफाई करके अलग अलग कोटा दे सकते हैं या नहीं? दिस वाज द केस व्हिच वाज दिस EV चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट struck down the Andhra Pradesh law which classified the SC communities into groups and बोला that this change is unconstitutional because प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ये लिस्ट है इसको स्टेट गवर्नमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट टिंकर अराउंड विद द लिस्ट। ये लिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 341 के अंदर इशू करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गया? अब यहाँ पे 2-3 कास्ट है जो आपको याद रखनी है। One is in Punjab and Haryana there are Balmikis and Mazhabi Sikhs, इनके बारे में SC कोटा आया था पहले। दूसरा, there is one more category
ऑफ कास्ट जिनका नाम है अरुण थातियार, चक्किलियान, मदारी, मदिगा, पगादी, थोटी एंड आदि आंध्रा, इन सब के बारे में भी देयर वाज दिस केस ऑफ गिविंग देम सेपरेट सब कैटेगराइजेशन, ठीक है, सेपरेट कोटा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट नाउ तमिलनाडु का जो ये जजमेंट है, तमिलनाडु का जो ये कोटा लॉ है, इसको अपहेल्ड कर दिया। प्लस जो इससे पहले जजमेंट आया था चेन्नैया, ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश वाले केस में, इस जजमेंट को भी क्या बोला दैट दिस जजमेंट डज नॉट अपहोल्ड नाउ, इस जजमेंट को हटा दो, दिस जजमेंट वाज ओवरटर्न्ड, दिस जजमेंट वाज अपहेल्ड। दोनों केसेस को समझना है, दोनों लॉज को समझना है, एंड देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये वाला जो लॉ था तमिलनाडु का, इट वाज एक्चुअली कॉल्ड एज तमिलनाडु अरुण थातियार रिजर्वेशन एक्ट 2009, जिसमें एक कास्ट है, बड़ी कास्ट जिसका नाम है अरुण थातियार, उसके अंदर सब कास्ट है जिनमें मदारी, मदिगा, पगादी, थोटी एंड आदि आंध्राज आते हैं। इसके साथ साथ देयर वर दीज वाल्मीकिस एंड मजहबी सिख्स हु वर गिवन दिस कोटा अर्लियर, ठीक है, इन पंजाब एंड हरियाणा। यहां तक क्लियर है। अगर आप सब कैटेगराइजेशन की बात करो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की, तो ये सब कैटेगराइजेशन असल में आई कहां से और क्यों हुआ, मेजर एस्पेक्ट्स क्या है सब कैटेगराइजेशन के। बेसिकली देयर वाज दिस मदिगा कम्युनिटी, ठीक है, ये मदिगा कम्युनिटी जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, ठीक है, जो अरुण थातियार के अंदर एक सब कम्युनिटी आती है जिसका नाम है मदिगा कम्युनिटी। वो लोग डिमांड कर रहे थे तेलंगाना में 50% ऑफ SC, because they constituted 50% of all the SCs in Telangana, and they said that we should have larger quota among the reservation seats which are reserved for SCs, ठीक है। बट चूंकि वहां की गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय मल्ला कम्युनिटी, इसीलिए वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसीलिए वो लोग चाह रहे थे दैट वी शुड बी अलॉटेड अ डिफरेंट कोटा, ठीक है। और उसके बाद लंबा स्ट्रगल चला, उसके बाद एक कमीशन आया, जस्टिस पी रामाचंद्र राजू कमीशन 1996 में, एंड देन 2007 में नेशनल कमीशन आया, एंड बाकी सारे स्टेट्स में भी ऐसे ही कंडीशंस हुए थे, जैसे ये वाल्मीकि और मजहबी सिख्स का ये वाला केस चल रहा था पंजाब एंड हरियाणा में, बिहार में भी ऐसे ही केस चल रहा था। आर्टिकल 341 एंड 342 हमने बोला, 341 आर्टिकल टॉक्स अबाउट द SC लिस्ट एंड 342 टॉक्स अबाउट द ST लिस्ट which is created by president, ठीक है, एंड पार्लियामेंट। 342 का जो लिस्ट है, ये 342 के अंदर पार्लियामेंट लिस्ट बनाता है। देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन अगेंस्ट दी सब कैटेगराइजेशन, रिमेंबर दिस, देयर इज नो exception or explicit exception or prohibition of subcategorization of castes in constitution, ठीक है। कल को ये बोला जाएगा दैट आर्टिकल 341 प्रोवाइड्स फॉर सब कैटेगराइजेशन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ना तो प्रोहिबिशन है ना तो ये प्रोवाइड करता है फॉर सब कैटेगराइजेशन, ठीक है। इट ओनली टॉक्स अबाउट द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई हमारी सारी चीजें, और यहाँ तक हमने समझ लिया कि सब कैटेगराइजेशन क्यों किया जा रहा है। दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स जो कि पिछली बार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला था अबाउट ESZ, ठीक है, कि इको सेंसिटिव जोन्स, फॉर एग्जांपल कोई कंजर्वेशन एरिया है, जैसे कोई नेशनल पार्क है, ठीक है। अब ये नेशनल पार्क इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है कि अगर आपने इसमें कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, ग्रोथ या डेवलपमेंट की एक्टिविटी, रोड बनाया, टूरिज्म, सफारी बनाया, ठीक है, जंगल सफारी बनाया, तो यहाँ का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है, यहाँ के जो एनिमल्स है वो मर सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट यहाँ तक कहानी। तो इसीलिए आप एक काम करो, इस नेशनल पार्क के अराउंड में 10 किलोमीटर्स का एरिया ऐसा ले लो
जहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई भी एक्टिविटी ना हो, ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, और इस एरिया को बोलो ESZ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ताकि ये जो पूरा एरिया है ये प्रोटेक्ट हो जाए। एक तो नेशनल पार्क भी प्रोटेक्ट हो जाए और उसके बाहर का एरिया भी प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि बिकॉज जो की और कोर यहाँ पे स्पीशीज पाए जाते हैं, चाहे वो फ्लोरा हो फौना हो, उनको प्रोटेक्शन मिले, अच्छी प्रोटेक्शन। नाउ इस नोटिफिकेशन को निकाले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 बार निकाली, बट देर आर सम स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु हु आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। ठीक है, इसी संदर्भ में एक हमारे पास माधव गाडगिल कमेटी आई थी, जिसने बोला था दैट एंटायर which was in 2011, it said पूरा जो वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है पूरे का पूरा उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहिए, which comprises of around 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। ठीक है, हावेवर उसके बाद एक कस्तूरी रंगन कमेटी आई। कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला नहीं, 37% जो एरिया है उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीज है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। नाउ लेट्स understand what is this ecologically sensitive area and what how it can help us in ecological preservation। ठीक है, basically it was in 2002 to 2016 in which national wildlife action plan was announced by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्लान के अंदर क्या बोला गया, दैट 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री से 10 किलोमीटर बाहर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 10 किलोमीटर बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस एरिया is ecologically fragile and can be considered or declared as ecologically sensitive zone under the Environment Protection Act of 1986। इसको डिक्लेयर कर सकते हैं ESZ अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देयर वाज दिस 10 किलोमीटर रूल। ठीक है, और बोला गया ये जो 10 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा नेशनल पार्क के अराउंड, इसको बोला जाएगा सेंसिटिव कॉरिडोर। यहां तक क्लियर हो गया सेंसिटिव सेंसिटिव कॉरिडोर कैसे बना। अब ये जो ये ESZ है, इस ESZ में क्या क्या कर सकते हैं, द एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, इन ESZ दीज आर, सबसे पहले कमर्शियल माइनिंग, ये नहीं कर सकते हैं। सॉ मिल्स, जहां पे लकड़ी काटी जाती है वो नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज विच कॉज पोल्यूशन नहीं कर सकते, या नॉइज क्रिएट करे, एयर वाटर सॉइल का पोल्यूशन करे, वो नहीं बना सकते। मेजर HEPs, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, एंड कमर्शियल यूज ऑफ वुड नहीं कर सकते इस एरिया में। दीज आर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। हावेवर टूरिज्म एक्टिविटीज, टूरिज्म एक्टिविटीज में लाइक हॉट एयर बलून्स ओवर नेशनल पार्क, discharge of effluents or any solid waste or production of hazardous substances, these are also prohibited। tourism is allowed but tourism में कुछ activities है which are not allowed। tourism में कुछ allowed activities हैं, कुछ not allowed है। which are the not allowed activities? पहले है hot air balloons। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हॉट एयर बलून्स। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज नहीं करना है इन एरियाज में। प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस नहीं करना है। देयर शुड बी, दीज आर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, याद रखना यहां तक, दीज आर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, बट देयर आर सम रेगुलेटेड एक्टिविटीज एंड सम परमिटेड एक्टिविटीज ऑल्सो। लाइक यहां पे जो रेगुलेटेड एक्टिविटीज है उनमें फेलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, these are the prohibited activity, these are the permitted or regulated activities, sorry, I'll use another pen। felling of
trees. Second is establishment of hotels. These will be regulated, मतलब allowed है but under regulation. Hotels, natural water का commercial use, ठीक है, commercial use, remember commercial use, ठीक है। फिर आप जब पेपर में आता है तब बोलते हो आप कि नहीं ये तो ठीक है, कमर्शियल यूज क्यों ही करने देंगे हम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक केबल्स। इलेक्ट्रिक केबल्स यहां से डाली जा सकती है। सेकंड, डिस्चार्ज चेंज ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम। एग्रीकल्चरल सिस्टम को रेगुलेट करना है यहाँ पे। प्लस एडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। टेक एंड पेस्टिसाइड्स को अडॉप्ट करना। व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे है जो परमिट करी जा रही है। द परमिटेड एक्टिविटीज आर, मैं इसलिए नहीं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ सारा बिकॉज बाद में पीपीटी से लोग लिखते रहते हैं। परमिटेड एक्टिविटीज आर ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो ऑलरेडी वहां पे है, जो ऑनगोइंग है उसको अलाउ किया जाएगा एज इट इज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, प्लस ग्रीन टेक्नोलॉजी। These are permitted activities in eco-sensitive zones. Remember, prohibited, permitted and regulated activities are different and they are classified and regulate, आराम से उनको इन्यूमरेट किया गया है अच्छे से, कौन कौन सी एक्टिविटी है कौन सी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, यही सब चीजें हैं जो हमें समझनी है। ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है, ठीक है, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये नेशनल पार्क का एरिया है और हमने ये इसके अराउंड एक बफर जोन बना दिया। दिस बफर जोन एक्ट्स एज अ शॉक बफर, ठीक है। ये जो शॉक लगने वाला होता है बिकॉज ऑफ द आउटर एक्सपेरिमेंट्स, लाइक यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बन एरिया से यहाँ पे लोग जा रहे हैं फॉर रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट एंड चिलिंग आउट, बट व्हेन दे गो देयर दे स्टार्ट polluting the environment, they start doing nuisance over there, noise, music, dance, parties and all, which should not hamper the internal core area। ये जो core area है इस पार्क का वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो बाकी एरिया है जो हमने ये बेल्ट बनाया 10 किलोमीटर का, वो एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ तक हमें समझ में आ गई चीज, ठीक है। चलो, ये था ये 10 किलोमीटर वाला कहानी। However, there was a important Supreme Court judgment which came in June 2022, in which it said that every protected forest, national park, and wildlife sanctuary across the country should have mandatorily a minimum of 1 kilometer of ESZ। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट इज मैंडेटरी दैट हर एक नेशनल पार्क, हर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर 1 किलोमीटर का एटलीस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होना ही चाहिए, ठीक है। दिस वाज गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बानरगट्टा नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। दिस मिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस पूछता है और ये क्वेश्चन इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं जैसे एस्ट्रॉयड बेन्यू या अर्थमिस मिशन, लीजा, यू कैन से जेम्स वेब टेलीस्कोप, मतलब हर एक चीज पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लैंग्रेजियन पॉइंट्स, L1 पॉइंट, चंद्रयान, है ना, मंगलयान, इन सब पे क्वेश्चन आ चुका है। तो दिस टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, वन इज दिस एक्सियोम 4 मिशन एंड अनदर इज इंडिया का गगनयान मिशन। इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को हमें
स्पेस फ्लाइट लेके जाना है, स्पेस में लेके जाना है और फिर वापस लेके आना है, ठीक है? दैट इज वन थिंग। एक्सियम 4 क्या करेगा? एक्सियम 4 इंडिया के साइंटिस्ट्स को लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसके लिए हमारे पास 2 कैप्टन्स हैं। एक का नाम है प्रशांत बालाकृष्णन, दूसरे का नाम है सुभा शुभांशु शुक्ला। ठीक है, दीज आर टू कैप्टन्स जिनको भेजा जा रहा है इसरो और नासा के एक जॉइंट कोलैबोरेशन मिशन के द्वारा। कहां पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और वहां से वापस लाया जाएगा। ये जो एक्सियम 4 है, दिस इज फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। ठीक है, फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन विच विल गो टू आईएसएस। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है। क्या है? प्राइवेट स्पेस फ्लाइट। इट इज ऑपरेटेड बाय एक्सियम स्पेस। एक्सियम स्पेस आईएनसी यूएसए की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, एंड दिस कंपनी यूजेस मिसाइल्स डेवलप्ड बाय एंड स्पेसक्राफ्ट्स डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स। ये स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट को यूज करती है जिसका नाम है क्रू ड्रैगन। ठीक है, ये याद रखनी है सारी चीजें। नेक्स्ट, द फ्लाइट इज इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड विल बी द फोर्थ फ्लाइट। एक्सियम 1 2 3 ऑलरेडी चले गए हैं। ठीक है, ये आगे आने वाला है, दैट इसको 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा। एंड दिस विल इंश्योर कि ह्यूमन प्रेजेंस इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, क्योंकि आईएसएस भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही लोकेट है। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों ये भेजा जा रहा है? फॉर कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स। ठीक है, एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीन चीजें इसके ऑब्जेक्टिव में आती है और तीन ही चीजें ये अचीव करेगा। सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स हमने देख लिया कौन कौन होगा। वो यूएसए जा रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर, और वहां पे ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे इस मिशन के थ्रू। कहां पे? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लास्ट में 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के पेपर में, जिसमें बोला गया था द वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पूछा गया था द वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टैंड, दिस इज कोविड-19। ठीक है, वायरस इज कोविड-19। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? 2023 में कॉन्फ्लिक्ट क्या था? गलवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इंडिया और चाइना का। इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। कौन कौन सी चीज एससीओ का फंक्शन इफेक्ट कर रही है? वन इज दिस कोविड, अनदर इज गलवान। अगर आपने दोनों चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक मेटाफोरिकल सेंस में पूछ रहा है। ये मेटाफर यूज कर रहा है दैट इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक वायरस है, और ये कॉन्फ्लिक्ट वायरस है। इसकी एनालॉजी हमें देनी है आंसर में, दैट कि ये जो वायरस है कॉन्फ्लिक्ट का, ये कहाँ कहाँ से डेवलप होता जा रहा है। इट्स नॉट ओनली इंडिया एंड चाइना का कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ऑल्सो इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इट्स ऑल्सो इंडिया एंड नेपाल का कॉन्फ्लिक्ट। इट्स ऑल्सो द कॉन्फ्लिक्ट एट इंटरनेशनल लेवल विच इज प्रिवेंटिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. अगर आप देखो तो जो आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट होते हैं। देन यू आर आस्क्ड टू डिसाइफर दीज स्टेटमेंट्स। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन और डिस्कस द रोल ऑफ एससीओ इन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, और इसको आंसर करना सबके बस की बात है। सब लोग लिख लेंगे, यहाँ पे आंसर्स डिफर नहीं करेंगे, सब लोग एक जैसा आंसर लिखेंगे। बट जब बात आती है ना ऐसे स्टेटमेंट की, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तब आपको समझना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, और जो वायरल कॉन्फ्लिक्ट है, ये वायरल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे देशों को अफेक्ट कर चुका है। और कौन कौन सा देश है जो इस कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट हुआ है? एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज nations who are affected by the conflict which are the part of SCO, और उसमें से भी जैसे रशिया, ठीक है, वो वाला कॉन्फ्लिक्ट एससीओ को कैसे हैम्पर कर रहा है, ये समझना जरूरी, और उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, एससीओ को हमने ब्रॉड बताया दैट इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन एस्टैब्लिश द
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस ऑफ यूरेशिया एट लार्ज। ठीक है, यूरोप एंड एशिया का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहाँ पे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं इन डिफरेंट एंगल्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस डायमेंशंस। इसके साथ-साथ वी कैन आल्सो टेक केयर ऑफ टेररिज्म बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे रैट्स भी है, climate change, reinforcing the cultural ties and connecting India's continental diplomacy strategy. What are the challenges with respect to SCO? ठीक है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। रैट्स ड्यू टू द कोऑपरेशन इन टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, ड्यू टू द इंडिया, ये ईरान, रशिया एंड चाइना एक्सेस। देखना कितने कॉन्फ्लिक्ट्स इस आंसर में डिस्कस किए गए हैं। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ टेररिज्म, ईरान, रशिया एंड चाइना की एक्सेस एंड एंटी वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एससीओ, जो रिसेंटली एक्सपेंशन हुआ था टर्की एंड सऊदी अरेबिया का। ठीक है, अब वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज वेस्ट इज अगेंस्ट टर्की, है ना। तो वो सारी चीजें, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द न्यूमरस चैलेंजेस विच आर फेस्ड इन एससीओ। नाउ हाउ इंडिया कैन प्ले अ रोल, इंडिया कैसे कर सकता है ऐसा काम कि एससीओ को एक प्रोडक्टिव विंग बनाए, प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म बनाए फॉर एंटायर यूरेशियन रीजन। is like India can promote its digital payments on this platform. India can boost the regional connectivity, जैसे INSTC का पावर हमने अभी दुनिया को दिखाया दैट रशियन कोल कैसे डायरेक्टली without getting involved into the China conflict or South China Sea or Indo-Pacific conflicts or the Western conflicts in the Mediterranean Sea, how can we just सब चीजें हटा के हम कैसे रशिया एंड इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ INSTC, वो भी हमने दिखा दिया दुनिया को। तो वो भी कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ एससीओ एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इनफॉर्मल ट्रैक टू नेगोशिएशंस, cultural and economic ties, India's historical and cultural connections with Eurasia along with its youthful population. So these are some of the points जो हम discuss कर लिए इस आंसर में। With this, I wish you all the best. Thank you for connecting in here.